Good morning, all of you. I hope you all are well. So, students, today we will start our new chapter, chapter 3, working with windows. So, we will learn about in this chapter how to work with the window. So, let's start. First of all, students, myself Ritu Pandey, and I am your computer teacher. Today we will read about the working with window. So, introduction to windows. First of all, I'm asking a question. What is windows? Do you know that the what is windows? Okay, so you can see this is window. You can see at home window. आपके घर में सबके यहाँ windows होते हैं. This is a window. But this is not a computer window. We can talk about the Microsoft window. So, what is a window of computer? The window is an operating system which makes the computer system work. And without windows, you cannot operate the computer, such as the system unit, monitor, and the keyboard. It means without window हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो फर्स्ट स्क्रीन जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं हमारे सामने प्रेजेंट होती है दिस इज कॉल्ड अ विंडो दिस इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप ये विंडो है दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू हैव टू ऑलरेडी लर्न अबाउट द chapter 1 there are the two types of computer system the hardware and the software. So we talk about in this chapter the software, and there are the two types of software, system software and the application software. So the application software is a operating system. So first of all we operate a computer with the use of a operating system. Okay, so students, first of all, we know that who is the founder of a Microsoft Windows? The Bill Gates and Paul Allen. He is a founder of Microsoft Windows, and on April 4, 1975, he was invented the Microsoft Windows. Okay, students. So this he is a founder of Microsoft Windows. So students, before starting chapter, I am asking some questions. So my first question is, what is Windows? So the Windows is operating system, okay? And how do you bus and motor runs? You can see a bus. बस कैसे चलती है? ड्राइवर चलाता है. Yes, I know. बस को ड्राइवर चलाता है. बट ड्राइवर क्या करता है? उसे ऑपरेट करता है. बट बस कैसे चलती है? इंजन से. सो अगर हमारे बस में या किसी मोटर में इंजन नहीं होगा तो वो कैसे चलेगी? ओके, सो द बाय इंजन द बस वॉज रन. एंड सो हाउ डज कंप्यूटर रन? सो कंप्यूटर कैसे रन करता है? हम कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं. बट अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सो हम कैसे कंप्यूटर पे वर्क करेंगे? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर करने में हमें हेल्प करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. विंडोज. An operating system provides a platform through which a user can interact with the hardware using software. When the user gives an instruction through software, it is passed on the operating system. It means operating system जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है यूज़र को. यूज़र इंटरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कराता है. जैसे हम हार्डवेयर के थ्रू अगर हमने कोई वर्क किया है
सो वो हमें प्रेजेंट होता है यूजिंग द सॉफ्टवेयर इन योर मॉनिटर। यानी हमारा हार्डवेयर है और हमारा सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वेस्ट है, बेकार है, लॉस्ट है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो उस कंडीशन में भी सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं होता है। ओके, व्हेन द यूज़र गिव्स अ इंस्ट्रक्शन, जब कोई यूज़र इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं सो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो होता है इंस्ट्रक्शन वो पास्ड होता है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले उसे पास करता है, देन वो हमारा जिससे हमने अगर वर्क किया, टाइपिंग किया तो हमने किस पे किया, वर्ड पे किया या एक्सेल पे किया या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे किया, तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए कि वो ऑपरेट कैसे करेगा, तो दिस इज कॉल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम। It then uses this instruction and determine how the hardware and software of the computer should be utilized in the best possible way. So students, जब भी हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन या कोई भी यूज़ करते हैं यूजिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हमारे कंप्यूटर में एक बेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए जिससे मतलब प्रॉपर वे में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके हार्डवेयर, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह प्रॉपर वे में होना चाहिए जिससे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, डॉक्स, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड देन iOS। दीज आर द सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जनरली वी कैन यूज़ अ विंडोज़। ओके, so category of operating system. The operating system are category into two types. There are two types of operating system. The first one is graphical user interface like GUI, and the second one is character user interface like CUI. So let's start with the graphical user interface. Microsoft Windows is a graphical user interface based operating system. GUI operating system creates a user-friendly environment which allows the user to interact with the computer using graphical symbols like icons, menus, and so on. And Windows is one of the most widely used GUI operating system. It means GUI से आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफिकल, इट मीन ग्राफिक्स। जब आप विंडो ओपन करते हैं तो आपको जो आइकन्स, मेन्यूज, जो भी चीज़ें शो होती हैं इन योर स्क्रीन, इन योर विंडो, दीज आर द ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स के थ्रू होती है। और हम जब कोई फाइल या फोल्डर्स क्रिएट करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्राफिक। सो यूज़र जो भी चीज़ें उस पर क्रिएट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमें ये अवेलेबल कराता है और ये हमको प्रोवाइड कराते हैं कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बेस पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक सिम्बल्स जो भी हैं, जो भी सिम्बल्स होते हैं सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इट मीन्स CUI। Character user interface operating system lets you interact with the computer by typing command। यानी हम जो टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के थ्रू वो हमें कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो MS Docs यानी MS डॉक्यूमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ CUI। यानी MS डॉक्यूमेंट पे हम टेक्सेस, नंबर, सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। यानी हम कैरेक्टर्स यूज़ करके हम उस पर वर्क करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द विंडोज़ डेस्कटॉप। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्टेड। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो आपका विंडो ओपन होके आता है, दिस इज कॉल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो डेस्कटॉप। जैसे हम विंडो कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, हम इसे बहुत सारी चीज़ कहते हैं। ओके,
So the first screen that appears on the computer after booting is known as the desktop. जब हमारा कंप्यूटर बूट करता है, बूट मीन्स जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सीपीयू में बटन प्रेस करते हैं, सो एक आप देखा होगा सर्कल मोशन में स्क्रीन आपका स्क्रॉलिंग होती है, देन दिस इज़ आर बूटिंग, यानी पूरा कंप्यूटर जब बूट होता है, जब बूट होने के बाद स्टार्ट होता है तो हमें जो डेस्कटॉप प्रोवाइड होता है, फर्स्ट स्क्रीन प्रोवाइड होती है, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप. It contains a small graphical symbol known as icon and a long horizontal bar at the bottom called taskbar. आप जब ओपन करते हैं अपना डेस्कटॉप तो सबसे नीचे एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, हॉरिजॉन्टल बार दिखता है, दिस इज कॉल्ड अ टास्क बार. एंड देन स्टार्ट बटन इज द फ्रिक्वेंटली यूज बटन ऑन द डेस्कटॉप. आपके कॉर्नर पे आपको स्टार्ट बटन शो होता है जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कोई भी फाइल ओपन करने के लिए. ओके, एंड देन क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन डिस्प्ले वेरियस ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ अ मेन्यू. आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके वेरियस टाइप के मेन्यूज़ ऑप्शंस ओपन होते हैं, देन आप उसमें से कोई भी ऑप्शंस को क्लिक करके देन कोई भी वर्क कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड अ विंडो. ओके, you can see in the picture, this is the icon, this is the start button, this is the start button, and this is icon. These are all menus you can see in the screen. This is the icons, and this is a task bar, this is a task bar, एंड दिस इज़ अ स्टार्ट बटन. ओके, तो यू कैन सी जब फर्स्टली आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो इस तरह का आपके सामने स्क्रीन ओपन होता है और नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी टास्क बार होती है. ओके, सो नेक्स्ट लास्टली इन्फो बॉक्स. विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो. यानी विंडो की हमें कई सारे वर्जन्स अवेलेबल है, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10. सो द विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन है जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमें प्रोवाइड करता है. देन टू बूट अ कंप्यूटर मीन्स टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स रैम. यानी बूटिंग क्या होता है, अभी हमने बूट के बारे में सुना कि कंप्यूटर जब बूट होता है तो बूट का मतलब है कि जब हम ऑन करते हैं अपना कंप्यूटर तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है. जब कभी भी हम मोबाइल भी ओपन करते हैं, कंप्यूटर ओपन करते हैं तो लोडिंग आपको शो होता है, दिस इज कॉल्ड अ बूटिंग. वो बूटिंग होता है आपके कंप्यूटर के रैम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है. सो दिस इज कॉल्ड अ बूटिंग. आई होप you all are understood. So student, thank you and have a nice day. Stay home, stay healthy. Thank you.